गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आई एम डॉक्टर आदित्य मिश्रा। So let's start the topic. After studying this unit, you will be able to appreciate general trend in chemistry of element of group 15, 16. One second, guys. 19. Learn the preparation property and use of dinitrogen and phosphorus and some other important compound. Describe the preparation property and uses of dioxygen and ozone and chemistry of some simple oxide. Known known allotropic form of sulfur, chemistry of its important compound and structure of oxoacid. ठीक है. Describe the preparation and property of chlorine and hydrochloric acid. Know the chemistry of interhalogen and structure oxoacid of halogen. Enumerate the use of noble gas. Appreciate the importance of the element and their compound day by day in life. चलिए गाइस शुरू करते हैं. Diversity of chemistry is hallmark of P block element, manifest in the ability to react with the element SDF block as well as their own. In class 11th, you have learned that the P block element are placed in group 13 to 18 of the periodic table. The valence shell electronic configuration is ns2np6, except helium, which has 1s2 configuration. The property of P block, like that other, are greatly influenced by atomic size, ionization enthalpy, electron gain enthalpy, electronegativity. The absence of d orbital in second period and the presence of d and f orbital in heavier element starting from third period onward have a significant effect on the property of the element. ठीक है. In addition, the presence of all the three elements, metal, metalloid, and non-metal, bring a diversification in chemistry of this element. Having learned the chemistry of element of group 13 and 14 of P block of periodic table in class 11th, you will learn the chemistry of the element of subsequent group. देखिए, जो ग्रुप 15 है ना, बहुत ही मतलब अजीब ग्रुप है. इसमें मतलब मेटल्स भी प्रेजेंट होंगे, मेटलॉइड्स भी प्रेजेंट होंगे और नॉन मेटल्स भी प्रेजेंट होंगे. ठीक, तो ये एक ऐसा ग्रुप है जो एस डी एंड एफ ब्लॉक कोई ऐसा मतलब प्रॉपर्टी नहीं शो करता जैसा पी पी ब्लॉक में जैसे मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल सारे वाले शो करते हैं. ठीक है. इनके इन इनके में डी कन्फिग्रेशन जैसे थर्ड सेल से शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो वो बहुत चेंजेस लाएगा. थर्ड जैसे नाइट्रोजन, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, तो उसमें नेपाल फिर नाइट्रोजन हो गया, फिर पाकिस्तान पी हो गया, ऑस्ट्रेलिया अर्सेनिक. तो अर्सेनिक जो है मतलब थर्ड ग्रुप का मेंबर, वो अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी कन्फिग्रेशन. ठीक है, अब उसको हम लोग आगे देखेंगे कैसे क्या कौन क्या प्रॉपर्टी शो करता है, कैसे करता है, वही वही. ठीक है, ओके. ग्रुप 15. Group 15 include nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth and moscovium. ठीक है. As you go down the group, there is a shift from non-metallic to metallic through a metalloidic character. Nitrogen and phosphorus are non-metals. Arsenic and antimony are metalloid, and bismuth and moscovium are typical metal. देखिए, जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे की तरफ आएंगे, जैसे ग्रुप में आप नीचे की तरफ आएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा. इंक्रीज तो वही दे रहा है कि जो नीचे के मेटल हैं वो नीचे के जो है वो बिस्मथ और मॉस्कोवियम वो टिपिकल मेटल है. ठीक है, जो ऊपर के हैं वो नॉन मेटल होंगे और जो बीच के हैं वो मेटलॉइड होंगे. ठीक है, यही ये समझाने की कोशिश कर रहा है. Molecular nitrogen comprise 78% of volume of atmosphere. In Earth crust, it occurs at sodium nitrate NaNO3 called Chile saltpeter, ठीक है, and potassium nitrate Indian saltpeter. It it is found in form of protein in plant and animal. Phosphorus occur in mineral of aptite family. Calcium phosphide, ठीक है, CaX2, fluorine, chlorine, OH. Example fluorspide, calcium phosphide, which are the main component of phosphate rocks. ठीक है. Phosphorus is essential constituent of animal and plant matter.
It is presence in the bone as well as the living cells. Phosphoprotein are present in milk and egg. Arsenic, antimony and bismuth are found mainly as sulfide minerals. Important चीजें हैं. मॉस्कोवियम इज सिंथेटिक रेडियो एक्टिव. देखिए, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे ना ग्रुप में, उसमें रेडियो एक्टिविटी कैरेक्टर भी शो होने लगेगा. ठीक है, जैसे पी ब्लॉक के नीचे वाले में. ठीक है, अब यही आप एफ ब्लॉक में जाएंगे तो उसमें मैक्सिमम रेडियो एक्टिव मिलेंगे. डी ब्लॉक में भी कुछ मिलेंगे लेकिन थोड़े कम मिलेंगे. ठीक है, एटॉमिक नंबर इतना. एटॉमिक नंबर 289 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिंग 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 ड्यू टू वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ अवेलेबिलिटी in very little impound. Its chemistry is yet to be stabilized. ठीक है, important here except for moscovium, important atomic and physical property of the element of the group along with the electronic configuration are given in 7 point. देखिए, ये टेबल है, इसमें इंपॉर्टेंट जो ग्रुप के मतलब जो ग्रुप के मेंबर है 15 ग्रुप के, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एसबी और बिस्मथ. ठीक है, इन सब का वो दिया गया मॉस्कोवियम को छोड़ के, क्योंकि वो ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं शो करता, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है. वो मतलब बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी वगैरह शो करता है. तो इनका प्रॉपर्टी देख लेते हैं एक बार. देखिए, टॉप टू बॉटम अगर हम जाएंगे तो एटॉमिक या आयनिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होता है. तो देखिए कहाँ गया, एटॉमिक नंबर पहले देख लेते हैं. नाइट्रोजन का 7, फास्फोरस का 15, 33, 51, 83. ये तो आप उससे एटॉमिक स्ट्रक्चर में 2, 8, 8, 18, 18, 32 से कर लेंगे. ये तो ऐड ऐसे ही डिफरेंस में बढ़ेगा. ठीक है, एटॉमिक मास नीचे जाएंगे बढ़ेगा. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने सीखा ही है. आयोनाइजेशन एंथैल्पी. ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप जाने में क्या होता है, डिक्रीज. क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा. देखिए, एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज हो रहा है तो एटॉमिक साइज के कभी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी. तो देखिए, इसका सबसे ज़्यादा है, फिर इसका कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम. तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज. डिक्रीज क्या, आयोनाइजेशन एंथैल्पी. ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं. ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2-3 एलिमेंट का बहुत ज़्यादा होता है. सबसे ज़्यादा होता है फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा 3 के करीब होता है. ठीक है, फॉस्फोरस. क्यों इस इधर नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रहा है, क्योंकि देखिए मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है. मेटेलिक कैरेक्टर मतलब बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, कम होगा नीचे जाने पर, डिक्रीजेस. ठीक है, कोवेलेंट रेडियस. ठीक है, कोवेलेंट रेडियस क्या होगा, तो इंक्रीज होगा. रेडियस जैसे सबसे बड़ा कौन सा होगा, बिस्मथ होगा. जो नीचे वाले रहेंगे वो सबसे ज़्यादा, तो ये इंक्रीज होंगे. ठीक है, आयोनिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज. देखिए यहाँ तक इंक्रीज किया, फिर यहाँ तक डिक्रीज कर गया. तो सबसे ज़्यादा आयोनिक रेडियस किसका होगा, सबसे ज़्यादा होगा आर्सेनिक का, फिर फॉस्फोरस का, फिर नाइट्रोजन का, फिर बिस्मथ का, फिर एसबी का. अब ये क्यों कम हो जाता है, एफ कन्फिगुरेशन आता है, ये सब हम अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट देखा जाए तो देखिए सबसे ज़्यादा ए एस का है. सबसे ज़्यादा ए एस का मेल्टिंग पॉइंट है, सबसे ज़्यादा आयनिक रेडियस ए एस का है. ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका है, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा इनका है. देखिए, बॉइलिंग पॉइंट एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है. ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट नीचे जाने पे इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, सबसे कम नाइट्रोजन का, सबसे ज़्यादा बिस्मथ का. ठीक है, ठीक है. ट्रेंड ऑफ सम एटॉमिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रुप आर डिस्कस्ड बिलो. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. द वैलेंस सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दिस एलिमेंट आर NH2 NP3. सबको पता है. द s ऑर्बिटल इन दिस एलिमेंट इज completely filled and p ऑर्बिटल आर हाफ filled, मेक देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्स्ट्रा स्टेबल. ठीक है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई. Covalent and ionic radii, in particular state radii, increase in size down the group. There is a considerable increase in covalent radius from nitrogen to phosphorus. However, from arsenic to bismuth, only a small increase in the covalent radius is observed. This is due to the presence of the completely filled d or f orbital in heavier metal. ठीक है, अब आयोनाइजेशन देख लेते हैं. आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज डाउन द ग्रुप. सबको पता है एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगा ड्यू टू द ग्रेजुअल इंक्रीज इन एटॉमिक साइज. देखिए यहाँ पे दिया भी है, बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड p electronic configuration and smaller size, the ionization enthalpy of group 15 element is much greater than that of group 14 in the corresponding period in order to increase. ठीक है, देखिए
कहीं भी फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल देखेंगे तो उनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कभी भी ज़्यादा होगा। जैसे देखिए NS2 NP3, पी में कितने भरेंगे, पी में 3 ब्रैकेट होता है, तो पी में मैक्सिमम 6 भरेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो ये क्या है, फुली फिल्ड। और अगर ये मतलब 1 2 3, अगर ये 3 भरे हैं तो ये क्या है, हाफ फील्ड। तो अगर ये दोनों कहीं भी आपको कॉन्फ़िगरेशन में दिख रहे हैं तो वो सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि वो ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैरी करेंगे। इसीलिए 15 ग्रुप का कभी भी उसके आस अगल बगल दोनों ग्रुप से ज़्यादा होता है। जैसे 14 से भी ज़्यादा होगा, 14 ग्रुप से भी, और 16 ग्रुप से भी उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर ऑक्सीजन को कंपेरिजन देखेंगे तो ऑक्सीजन वगैरह ग्रुप में 4 NP4 होगा, तो NP4 उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं करेगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन फैमिली। Electronegativity, the electronegativity value in general decrease down the group with the increasing atomic size. However, among the heavier element, different is not much pronounced. ठीक है। Physical property, all the element of the group are polyatomic, dinitrogen is diatomic, while all other are solid. Metallic character increases down the group. Nitrogen and phosphorus are non-metal, ऊपर पढ़ा ही है। Arsenic and antimony metalloid नीचे वाले metal हो जाएंगे। This is due to the decrease in ionization enthalpy and increase in atomic size. द बॉइलिंग पॉइंट इन जनरल इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सबको पता है एटॉमिक साइज पे डिपेंड करता है, तो इंक्रीज ही होगा। बट मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज अप टू आर्सेनिक, आर्सेनिक में सबसे ज़्यादा होगा, एंड देन डिक्रीजेज अप टू बिस्मथ। एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल द एलिमेंट्स सो एलोट्रोपिक। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, chemical property. Oxidation state attend in chemical reactivity. The common oxidation states of the element are -3, +3, and +5. Tendency to exhibit -3 oxidation state decrease down the group due to the increased size and metallic character. ठीक है। In fact, the last member of the group bismuth hardly form any compound in -3 oxidation state. The stability of +5 state decreases down the group. The only well characterized bismuth 5 is BiF6। देखिए, इनर्ट पेयर इफेक्ट अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग को ये पता होगा कि +5 है और एक +3 होता है। ठीक है। तो +5 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीजेस, और +3 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज। ठीक है। तो कभी भी देखिए बिस्मथ +3 में ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू +5। ठीक है। बिस्मथ +3 में ज़्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू बिस्मथ इन +5। और वही नाइट्रोजन +5 में क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू नाइट्रोजन इन +3। देखिए ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो +5 ज़्यादा स्टेबल होगा नाइट्रोजन ग्रुप में, अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो +3 ज़्यादा वो स्टेबल होगा। क्यों होगा, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज that of +3 increase due to inert pair effect down the group. Beside the +5 oxidation state, nitrogen exhibit +1, +2, +4 oxidation state also when it reacts with oxygen. However, it does not form a compound in +5 oxidation state with halogens, as nitrogen does not have d orbital to accommodate the electron from other element to form bond. Phosphorus also show +1 and +4 oxidation state in some oxo acid. In case of nitrogen, all oxidation state from +1 to +4 10 पॉसिबल है, डिसप्रोपोर्शनल। ठीक है। अब देखिए HNO2 से HNO3 बन रहा है H2। ठीक है। सिमिलरली इन द केस ऑफ फॉस्फोरस, नियरली ऑल द इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन डिसप्रोपोर्शनेशन +5 से +-3 both alkali and acid. However, +3 oxidation state in the case of arsenic and antimony and bismuth become increasingly stable। देखिए नीचे की तरह आ रहा है तो +3 आ गया, +3 का स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। देखिए इंक्रीजेबली स्टेबल। ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू डिसप्रपोर्शनेशन। ठीक है। नाइट्रोजन इज रिस्ट्रिक्टेड टू द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ 4 सिंस ओनली 4 orbital are available for bonding. The heavier element have vacant d orbital in the outermost shell which can be used for bonding covalency and hence expand the covalency। देखिए PF6 तक एक्सपेंड होता है। ठीक है। लो गाइस, देखिए डाई नाइट्रोजन का प्रिपरेशन पढ़ेंगे। डाई नाइट्रोजन प्रोड्यूस कॉमर्शियली बाय लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इन एयर।
देखिए लिक्विड डाई नाइट्रोजन जिनका बॉइलिंग पॉइंट इतना होता है डिस्टिल आउट फर्स्ट लिविंग बियॉन्ड लिक्विड ऑक्सीजन, ठीक है। इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी याद रखिएगा, लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर करते हैं, NH4Cl NaNO2 और नाइट्रोजन वाटर और NaCl फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें NO और HNO3 बनेगा, ठीक है। इसको कैसे रिमूव करेंगे, तो इसका रिमूवल होगा सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम डाइक्रोमेट के मिक्सचर से, ठीक है। इट कैन, और देखिए नाइट्रोजन और कैसे ये बन सकता है, अमोनियम डाइक्रोमेट से अगर हीट करें तो नाइट्रोजन वाटर और क्रोमेट रिलीज होगा, ठीक है। वेरी प्योर फॉर्म, देखिए कभी भी प्योर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन अगर पूछ देगा कैसे फॉर्म होगा तो एजाइड, एजाइड जो होंगे जैसे सोडियम एजाइड, बेरियम एजाइड, इनसे फॉर्मेशन हो जाएगा इसका, ठीक है, एजाइड। डाई नाइट्रोजन देखिए प्रॉपर्टीज़ में, डाई नाइट्रोजन कलरलेस होते हैं, आउडरलेस होते हैं, टेस्टलेस गैस होते हैं और नॉन टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। डाई नाइट्रोजन के दो स्टेबल आइसोटोप होते हैं 14 और 15, ठीक है। इट हैज़ अ वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, बॉइलिंग पॉइंट इतना, प्रेशर इतना, लो फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबको पता है। डाई नाइट्रोजन इज इनर्ट, क्यों इनर्ट होते हैं, क्योंकि ये मल्टी बॉन्ड जो अपना ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करते हैं उनके कारण, ठीक है। एट रूम टेम्परेचर, अगर हाई हाई टेम्परेचर इसमें देंगे तो वो बॉन्ड ब्रेक होंगे बिकॉज ऑफ द हाई बॉन्ड एंथैल्पी नेट एन बॉन्ड, ठीक है। रिएक्टिविटी हाउ एवर इंक्रीजेज रैपिडली विथ राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। द हायर टेम्परेचर इट डायरेक्टली कंबाइंस विथ सम मेटल टू फॉर्म प्रीडोमिनेंटली आयनिक हाइड्राइड, ठीक है, आयनिक नाइट्राइड एंड विथ नॉन मेटल कोवेलेंट, कोवेलेंट नाइट्राइड। अब फ्यू टिपिकल देखिए, इससे ये, इससे ये। हैबर्स प्रोसेस क्या होता है, N2 और 3H2 से अगर फॉर्मेशन कर रहे हैं अमोनिया का तो वो हैबर्स प्रोसेस के अंदर आएगा। टेम्परेचर भी याद रखना है 773 केल्विन। डाई नाइट्रोजन कंबाइंड विद डाई ऑक्सीजन ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है, टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड। अब देखिए यूजेस एक बार देख लीजिए। द मेन यूज ऑफ डाई नाइट्रोजन हैबर्स प्रोसेस अमोनिया बनाने के लिए, इंडस्ट्रियल एंड केमिकल कंटेनिंग नाइट्रोजन सैनामाइड, इट आल्सो फाइंड इनर्ट एटमॉस्फेयर, ठीक है। एक और इसका इंपॉर्टेंट यूज, डाई नाइट्रोजन इज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट टू प्रिवेंट बायोलॉजिकल मटेरियल, ठीक है। और देखिए अमोनिया का प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो अमोनिया का तो एक नाइट्रोजन से हमने हैवर्स प्रोसेस देख लिया, और देख लेते हैं कौन कौन से प्रोसेस होते हैं अमोनिया फॉर्मेशन के। अमोनिया इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी इन एयर एंड सॉयल वेयर इट इज फॉर्म्ड बाय द डिके ऑफ नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक मैटर यूरिया, ठीक है। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2। अगर इसके इस पे वाटर का वो करेंगे तो ये क्या करेगा, अमोनिया का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ऑन स्मॉल स्केल अमोनिया, याद रखिएगा स्मॉल स्केल पे अमोनिया इज ऑब्टेन फ्रॉम अमोनियम साल्ट विच डिकम्पोज व्हेन ट्रीटेड विथ कॉस्टिक सोडा एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अमोनियम साल्ट जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और NaOH के साथ जब ये सल्फेट ट्रीट होगा तो NH3 का फॉर्मेशन करेगा वाटर और ये कैल्शियम। देखिए लार्ज स्केल पे हैवर्स प्रोसेस से आएगा। हैवर्स प्रोसेस हम लोगों ने ऊपर पढ़ ही लिया है, 773 केल्विन पे नाइट्रोजन और 1 रेशियो नाइट्रोजन का और 3 रेशियो H2 का जब आप रिएक्ट करेंगे 2 मोल ऑफ NH3 फॉर्मेशन करेगा, अमोनिया इज मैन्युफैक्चर, ठीक है। ये भी याद रखिएगा नेगेटिव में इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है इन अकॉर्डेंस टू ले कैटलियर्स प्रिंसिपल, हाई प्रेशर वुड फेवर द फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया, ठीक है। एमोनिया में, एमोनिया के फॉर्मेशन में हाई प्रेशर एवर्स प्रोसेस में वो फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, क्योंकि ले कैटलियर प्रिंसिपल कहता है कभी भी कोई भी चीज़ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाता है, ठीक है। The optimum condition for the production of ammonia are a pressure इतना 210 to power 5 about 200 atm, at temperature भी ज़्यादा होगा 700 Kelvin, and the use of catalyst such as iron oxide with small amount of CO2 and Al2O3 to increase the rate of attainment in equilibrium. The flow of charge for the production of ammonia is shown in figure इतना। Earlier iron was used as a catalyst, कैटलिस्ट विथ मोलिब्डेनम एज अ प्रमोटर, ठीक है। ये दिया है, ये आप देख लीजिएगा, वही दिया है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, कैटलिस्ट एल्युमिनियम ऑक्साइड K2O होता है, N2H2 पास होते हैं, फिर अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, लिक्विड NH3 रहा है, वही सारे, ठीक है। अब देखिए एन इसका प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। इसका बॉन्ड एंगल देखिए इतना और बॉन्ड लेंथ इतना। अमोनिया इज कलरलेस गैस, अगेन N2 इज अ कलरलेस गैस, अमोनिया इज अ कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल।
इट्स फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर इतना एंड इतना, ठीक है, respectively. In solid and liquid state, it is associated through hydrogen bond, as in the case of water, and that account for higher melting and boiling point. ठीक है, that accepted on the basis of the molecular mass. The ammonia molecule is trigonal pyramidal with nitrogen atom at the apex. It has a 3 bond pair and 1 lone pair. इलेक्ट्रॉन देखिए NH3 है, अब ये दिख ही रहा है तो एक बार मैं भी बना दूँ, तो ये क्या है, लोन पेयर है, और ये क्या है, 3 बॉन्ड पेयर है, बस वही बता रहा है। अमोनिया गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, देखिए N2 गैस क्या था, इनसॉल्युबल इन वाटर, और अमोनिया क्या, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। इट्स एक्वा सॉल्यूशन इज वीकली बेसिक ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ माइनस ओ एच आयन। देखिए एक्वा सॉल्यूशन वीकली बेसिक होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ माइनस ओ एच आयन, NH3 वाटर, ठीक है। It form ammonium salt with acid NH4Cl, NH4 twice SO4 as a weak base. It precipitates the hydroxide, hydrated oxide in the case of some metal. Of many metal for their salt solution. For example, zinc sulfate or NH4OH, zinc hydroxide और NH sulfate फॉर्म करेंगे जो वाइट पीपीटी का होगा, ठीक है। और यही अगर फेरस के साथ फेरिक क्लोराइड के साथ अगर ये रिएक्शन होगा तो ये फॉर्म होगा जो ब्राउन पीपीटी का होगा। तो ये कलर याद रखिएगा, कलर पूछ सकता है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन on nitrogen atom of the ammonia molecule make it Lewis base. It donates the electron pair and form a linkage with metal ion. And the formation of such complex compound find application of detection of metal ion, ठीक है। ये डीप ब्लू कॉपर कभी भी डीप ब्लू कलर देगा, AgCl के साथ वाइट पीपीटी बनेगा, Ag अमोनिया के साथ कलरलेस बनेगा, ठीक है। Ammonia is used to produce various nitrogen fertilizer, ammonium nitrate, urea, ammonium phosphate, and ammonium sulfate. And in the manufacture of some inorganic nitrogen, the most important one being nitric acid, liquid ammonia is also used as a refrigerant. ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जो बनते हैं, नाइट्रोजन फॉर्म नंबर ऑफ ऑक्साइड इन डिफरेंट ऑक्सीड, आपने देखा ही होगा कि नाइट्रोजन +1 से +5 सारे फॉर्म करता है, तो वही सारे ऑक्साइड आप पढ़ेंगे +1 से लेकर, देखिए +1 से +5। नाइट्रोजन +1 में कौन सा पाएंगे, N2O, N2O का देख लेते हैं, 2x प्लस ऑक्सीजन का -2 होगा। अब 2x इज इक्वल टू उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा +2, तो x कितना आएगा 1, 2/2 1, ठीक। NO का देख लीजिए तो -2, तो +2 उधर जाके हो जाएगा, तो वही दिखा रहा है। तो देखिए NH4NO3 से N2O बनता है। एक और रिएक्शन आएगा, एक और रिएक्शन आया था NH4NO2, उससे क्या बना था, नाइट्रोजन, और NH4NO3 से क्या बन रहा है, N2O। तो याद रखिएगा किससे क्या बन रहा है, ठीक है। NO2 आ जाएगा, NH4NO2 तो नाइट्रोजन बना देगा, NH4NO3 आ गया तो N2O बना देगा, ठीक है। इसका कलरलेस गैस होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। और जो +2 में क्या बनाएगा, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, NaNO2 फेरस सल्फेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये और ये NO बना लेंगे, ये भी कलरलेस गैस और न्यूट्रल गैस होंगे, ठीक है। थर्ड वाले देखिए, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड N2O3, ठीक है, +3 है क्योंकि यहाँ पे 2x प्लस -6, ठीक है, -6 उधर जाके प्लस हो जाएगा, +6 डिवाइडेड बाई 2 3 फॉर्म करेगा, ठीक है, तो ये +3 हो गया, ठीक है। 2NO प्लस N2O4 क्या बनाएंगे, 2N2O3, ये ब्लू कलर होगा, सॉलिड होगा, एसिड। देखिए दो दो इसमें जो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है, दो लोग कलर शो करेंगे, एक ये शो कर रहा है NO2, एक ये शो कर रहा है ब्लू सॉलिड, ठीक है। N2O3 और NO2, ये +4 में है, PbNO3 और से 2NO2 बन जाएगा, ठीक है। ये सारे याद रखिएगा आप। फिर N2O4 +4 है क्योंकि 2x -8 x इज इक्वल टू +4, ठीक है। 2NO2 को अगर कूल करेंगे तो N2O4 बनेगा, अगर N2O4 को हीट करेंगे तो ये बनेगा कलरलेस लिक्विड, ठीक है। N2O5 4HNO3 पर P4O10, N2O5 कलरलेस का। देखिए दो गैस कलर शो कर रहे हैं, एक N2O3 ब्लू कलर, एक NO2 ब्राउन कलर। ये 50 बार पूछा जा चुका है, तो आपको कलर याद रखना चाहिए, कौन कौन कैसे कलर फॉर्म करते हैं, रिएक्शन कैसे कैसे कौन कौन बन रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन स्टेट आप रेडॉक्स रिएक्शन पढ़े हैं तो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर इनका और बॉन्ड पैरामीटर, ठीक है। ये N2O का है, ये NO का इतना, N2O3 का ये,
मतलब ये सारे देखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। एक बार सारे एक बार गो थ्रू आपको होना पड़ेगा, ये किए किया, ठीक है। अब देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड को HNO3 बोलते हैं। नाइट्रोजन फॉर्म ऑक्सो एसिड सच एज hyponitrous, HNO3 nitrous and HNO3 nitric acid. Among them HNO3 is most important, ठीक है। Preparation in laboratory, nitric oxide is prepared by heating KNO3 and NaNO3 as concentrated H2SO4 in glass resort. NaNO3 plus H2SO4, NaHSO4 और HNO3 on large scale it is prepared mainly by Ostwald process, ठीक है। The method is based upon the catalytic oxidation of NH3, ठीक है। NH3 के ऑक्सीजन, NH3 पे जब ऑक्सीजन डालेंगे प्लेटिनम और RH गॉ कैटलिस्ट तो NO फॉर्म होगा, ठीक है। और ये देखिए आगे, नाइट्रिक ऑक्साइड थर्ड फॉर्म कंबाइन विद ऑक्सीजन टू गिव NO2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज सो फॉर्म डिजॉल्व इन वाटर टू गिव HNO3। ये सारी रिएक्शन है, इसको ओसवाल्ड सिंथेसिस कहेंगे, ओसवाल्ड प्रोसेस। तो आप याद रखेंगे कैसे कैसे, तो कैसे कैसे फॉर्म होगा। पहले अमोनिया के साथ ऑक्सीजन को जब करेंगे तो 4NO फॉर्म होगा, NO को जब ऑक्सीजन से करेंगे तो NO2 फॉर्म होगा, NO2 को जब वाटर से करेंगे तो HNO3 का फॉर्मेशन करेगा। NO इज थर्ड रिसाइकिल्ड इन एक्वस एंड कैन बी कंसनट्रेटेड डिस्टिलेशन इतना। फर्दर द कंसंट्रेशन ऑफ 98% कैन बी अचीव डिहाइड्रेशन विद द कंसंट्रेटेड, ठीक है। अब हम इसका वो प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, किसका, HNO3 का। इट इज़ कलरलेस लिक्विड, ये भी कलरलेस है। फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका बहुत ज़्यादा दिख रहा है। लेबोरेटरी ग्रेड अमोनिया और नाइट्रोजन दोनों से ज़्यादा दिख रहा है। लेबोरेटरी ग्रेड नाइट्रिक एसिड कंटेन 68% ऑफ HNO3 बाई मास एंड हैज ए स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना। इन गैसियस स्टेट HNO3 एग्जिस्ट एज अ प्लेनर मॉलिक्यूल विद द स्ट्रक्चर एज शोन। इन एक्वा सॉल्यूशन नाइट्रिक acid behave as a strong acid giving the hydronium and nitrate ion, ठीक है। HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ही आप देख लीजिए, HNO3, ठीक। तो ये नाइट्रोजन HNO3 माइनस, ठीक है, +5 शो करेगा। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। एंड एंड अटैक मोस्ट मेटल एक्सेप्ट नोबल गैस, ठीक है, सच एज गोल्ड एंड प्लेटिनम। The product of the oxidation depend upon the concentration of acid, temperature and nature। देखिए जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेंगे वो मैक्सिमम को रिड्यूस कर देंगे एक्सेप्ट कुछ नोबल गैस को छोड़ के। जैसे देखिए कॉपर जब कंसनट्रेटेड, देखिए जब कंसनट्रेटेड में जिंक रिएक्ट करे, कंसनट्रेशन में CO रिएक्ट करे तो ये NO2 का फॉर्मेशन करेंगे, NO2 दोनों, चाहे जिंक हो चाहे कॉपर हो, ठीक। अगर यही डाइल्यूट में रिएक्शन कर रहे हैं तो ये NO प्रोड्यूस करेगा, ये N2O प्रोड्यूस करेगा। कौन, कॉपर क्या प्रोड्यूस करेगा, N2O, NO, और यही जिंक क्या प्रोड्यूस करेगा, N2O। तो देखिए यही सब पूछता है कि डाइल्यूट में कॉपर का HNO3 से रिएक्शन करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, 2NO। अगर जिंक का डाइल्यूट में रिएक्शन करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, N2O, ठीक है। अगर दो कंसनट्रेटेड किसी में भी पूछ देगा तो NO2 फॉर्म होगा, ठीक है। और ये सब तो सारे आपको याद हो ही जाएंगे, ठीक है। सम मेटल एग्जांपल क्रोमियम एंड एल्युमिनियम डू नॉट डिसॉल्व इन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पैसिव film of oxide on the surface. Concentrated nitric acid also oxidize non-metal and their compound. Iodine is oxidized to iodic acid and carbon to carbon dioxide, sulfur to H2SO4, phosphorus to phosphoric acid। देखिए सबको रेडी ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, कौन, HNO3। अब ये ब्राउन रिंग टेस्ट क्या होता है, द फैमिलियर ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्राइड डिपेंड ऑन द एबिलिटी टू Fe2 plus to reduce nitrate to nitric oxide which react with Fe2 plus to form a brown colored complex. The test usually carried out by adding dilute ferrous sulfate solution to an aqueous solution containing a nitrate ion and the carefully adding concentrated sulfuric acid on the side, ठीक है। ये आपका ब्राउन रिंग टेस्ट है। यूज़ क्या है, द मेजर यूज ऑफ नाइट्रिक एसिड इज द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनियम नाइट्राइड, याद रखिएगा, फॉर फर्टिलाइजर एंड अदर नाइट्रेट यूज एक्सप्लोसिव पॉलीटेक्निक। इट इज आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रोटोलोडीन एंड अदर ऑर्गेनिक नाइट्रो कंपाउंड। अदर मेजर यूज इन द पिकिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, इचिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग रॉक फ्यूल्स, ठीक है। ठीक है, इसको इंड करते हैं, थैंक यू। और ये पार्ट 1 है,
और पार्ट 2 में हम फास्फोरस से उठा के पूरे पढ़ जाएंगे, कहाँ तक, 18th ग्रुप तक पूरे कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस, आई एम योर डॉक्टर आदित्य मिश्रा। थैंक यू।